Hello everyone, welcome to the Manu Law classes. In the session of daily news analysis, I am Naresh Sharma and today is 15th of July 2024. So first of all, we are going to have the current affairs of the day, and the global news is Trump survives assassination bid at US poll campaign rally. Recently, Donald Trump, former president of the United States of America, जिस यूएसए को वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है, उसके फॉर्मर प्रेसिडेंट पर अटैक हो गया और बाल बाल बच गए वो। इट मींस उनका जो ईयर था उस पर जो बुलेट थी वो टच करते हुए उसको काटते हुए निकल गई और उन पर ये असैसिनेशन का अटैक हुआ था। पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी ने इसको जो है क्रिटिसाइज किया है, कंडेम किया है, जिसमें इंडिया की प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है। सो बेसिकली ये कुछ ऐसी न्यूज हैं जो पूरे वर्ल्ड को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज को हिला करके रख देती हैं, बिकॉज वर्ल्ड में फिर इस तरह से देखने को मिलता है कि कोई भी शायद फिर सुरक्षित नहीं है। बाकी फिर कॉमन मैन की तो बात हम क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर जो बंदा था वो 20 ईयर ओल्ड एक व्यक्ति था जिसका नाम था थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ऑफ बेथल पार्क, पेंसिल्वानिया का ही था, जिसने इन पर शूट किया था जो है स्नाइपर राइफल से इन्होंने, और इस लड़के ने इनको शूट किया था। बाद में इसको फिर गिरा दिया गया, मींस उसको भी शूट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास में है एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है और स्पेशली इट हैज सम रेलेवेंस फॉर इंडियन पॉलिटिक्स एंड स्पेशली इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। केपी शर्मा ओली दैट विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। और केपी शर्मा ओली इनको माना जाता है लेफ्टिस्ट और इन्होंने हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट में ही बातें की हैं। आने वाले टाइम में हम इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स देखेंगे, बिकॉज इन्होंने इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं उनको ये डाउन टाइम पे ले जाना चाहते हैं। इंडिया के अगेंस्ट में बहुत सारे जैसे स्पीच देते हैं। कई बार इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर एरिया है उसमें मैप को भी डिस्प्यूटेड फॉर्म में दिखाते हैं। काली रिवर को लेकर के इंडिया और नेपाल का जो डिस्प्यूट है उस पर बार बार ये उसको काली रिवर को कभी बोलेंगे कि ये इधर से जाती है, ये उधर से जाती है, इसका ये रीजन इंडिया में नहीं पाकिस्तान सॉरी नेपाल में है। या कई बार ये बोलते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर रीजन है उसमें इंडिया के ही कुछ रीजन्स को ये नेपाल में बताते हैं। सो आने वाले टाइम में हमें नेपाल और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस है उसको लेकर के बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। देन वी विल आल्सो हैव सम आर्टिकल्स रिगार्डिंग इंडिया नेपाल रिलेशंस इन द अपकमिंग sessions or the prints of the Hindu and other newspapers. Menstrual leave must can't be left to firms' discretion. Now there we can find a movement which is all over around the world, and especially if we discuss about the Indian scenario, then we will find that there are some people, especially women, those who are demanding that the menstrual leave should be a legal procedure and it should be legally provided. Because if we leave the discretion, if we will leave such kind of issues on the discretion of the employers, then the women will not find their rights to be protected by the employers. Because women की अपनी एक genuine problem है, they are working women. Especially here we are talking about the working women, those who are engaged in various kinds of responsibilities in blue collar jobs, including labor, including leadership roles, including police forces, army, and different kind of professions where women are playing very important role and contributing to the development of the human society. But their natural problem, that is menstrual leave, and this is the time very sensitive for all the women, and they face such kind of emotional ups and downs, and they need to have some leaves so they can recover and they can manage their physical and emotional ups and downs during 2 or 3 days of their menstrual cycle. So there are certain people who are demanding, and even they are calling that there should be some judgments by the Supreme Court of India and higher judiciary in other sense, so that the women can get their rights protected in the service sector, in the labor sector, in other sectors also. नेक्स्ट इज देयर इज ओनली सम गुड इलेक्टोरल न्यूज। जब हम इलेक्टोरल न्यूज की बात करते हैं, सो देयर इज एन आर्टिकल दैट हैज बीन रिटेन बाय मिस्टर शशि थरूर। ही इज नोन फॉर हिज वेरी क्लिस्टर and complex and work a very tough and international level of language
and he is also known for his very high, very complex, very updated vocabulary, और उसके लिए जाने जाते हैं। और इनके जो आर्टिकल्स हैं ग्लोबल लेवल पर काफ़ी रेस्पेक्ट इनको मिलता है इनके आर्टिकल्स को। तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। इन दिस आर्टिकल ही हैज एनालाइज्ड द ग्लोबल सिचुएशन रिगार्डिंग डेमोक्रेसी इन स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वी विल डिस्कस द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस आर्टिकल with the help of these abstracted points from this article. So first point, he start with his article with the point that हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में बात हो रही थी 400 पार, बट ब्रिटेन में 400 प्लस उनको सीट्स मिली, इंडिया में नहीं मिली। फिर ये कहते हैं कि एक ऐसा पैटर्न हमको यहाँ नहीं मिल रहा बिकॉज एंड ऑफ दिस ईयर वी विल फाइंडिंग दैट मोर देन और अराउंड 60 कंट्रीज will have finished their elections by the end of this year. 60 countries में ऐसा elections आपको देखने को मिलेगा। Pundits found no patterns. It means pundits, that is a word which have been used in the electoral scenario where peoples are who are analysts of the political events. They are also called as pundits of politics. So they are finding no special pattern that what are going on all over around the world regarding the elections, democracies, democratic patterns. But still, broad narrative is. It means although various political analysts are unable to find out any specific pattern that what kind of elections and the types of democracies and the ups and downs of the democracies in different countries, and there are multiple countries where we are experiencing, we are organizing elections, but there are certain pattern. What is that? Democratic deconsolidation. Here in this word he is trying to argue that all over the world people are getting more attentive and they are trying to concise, they are trying to deconsolidate the powers of the parties which are in governments. And he is going to use another different terms that governments around the world becoming authoritarian. It means he is trying to convey the message that all over the world in the elections in different countries, people are trying to downsize the governments of that different countries and downsize the parties, downsize their powers, those parties who are in the power in government. For example, it is whether Britain, it is whether India, it is whether Pakistan. In most of the countries, जो पार्टीज पहले से पावर में थी उनको वोट्स प्रॉपरली उस सेंस में नहीं मिला जितने का उनको एक्सपेक्टेशन था। सो वो कहते हैं कि इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर बिकमिंग अथॉरिटेरियन, less respectful for freedom and individual media. So all over the world there has been a trend all including every party and every kind of ideology that they are not much respectful for the individual freedom, freedom of media, speech, expression, belief, faith, worship and political ideologies, and they are using their powers to downsize, to suppress the opposition views all over the world. That is one of their argument. Another is more unfriendly to autonomous institutions. Here he is arguing that every country in direct or indirect, in this way or that way, in this manner or another manner, every country have some kind of institutions, that is autonomous institutions. It is whether judiciary, it is whether investigative agencies, it is whether journalism. So all over the world there has been some trends that political parties, especially the powerful parties and those especially who are in governments, they are trying to suppress the voice of the dissent. Next is less restrained by checks and balances on their power. So he is trying to convey a message that all over the world, in all the democracies, the countries where parties are in power, they are not accepting the check and balance. For example, we have three pillars of the government, especially that is judiciary, that is one is executive and another is legislative. All these three organs, legislative, executive and judiciary, all these three pillars of the government, they are used to control or
balance each other by their power and their interventions. But in recent trends, we are finding that every branch of the government trying to avoid the checks and balances. Especially, we are talking here about legislature and the executive, and especially that is political executive, that is cabinet or the ministers or the people, those who are in power. Another point is that he is quoting one of the very famous political scientists, that is Samuel P. Huntington. It is very famous when those who are associated with the political science, and he is very famous thinker. And he say that once he used a term, that is third wave of democracy. He said कि एक टाइम था जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द कोल्ड वॉर, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको एक वेव ऑफ डेमोक्रेसी मिली थी देखने को. व्हाट वाज द दिस वेव ऑफ डेमोक्रेसी? This wave of democracy was that after the Second World War, there were multiple rebellions, movements, where people all around the world, and especially in the countries where the colonial powers were ruling, those countries including India and various countries of Africa, where there were powers like France, Italy, Spain, Portuguese, Britain, they were ruling all over these countries. But after the Second World War, these countries got freedom. So that was the freedom of that was the wave of democracy. And one और हमको देखने को मिला कि आफ्टर द कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर वाले टाइम जो था उसके बाद में भी हमको मिला कि देयर वर सर्टेन कंट्रीज हु गॉट फ्रीडम फ्रॉम अदर कंट्रीज, लाइक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया, दैट इज यूएसएसआर. दूसरा ये बात करते हैं, इसके लिए कुछ डेटा यूज करते हैं, कुछ जो ओवरऑल जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के थिंक टैंक्स हैं. एक है जैसे फ्रीडम हाउस यूएसए का, डेमोक्रेसी इंडेक्स है द इकोनॉमिस्ट की, और स्वीडन की एक थिंक टैंक है दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस. ये कहते हैं कि इनकी अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो स्पेशली टिल 2023 we find a pattern that in last 17 years there have been decline of democracy all over the world. So ये इसमें इस अपने डेटा को यूज करते हैं, उसके बेसिस पर ये कन्वे करते हैं. फिर ये कहते हैं बट डेमोक्रेसी का हमको डिक्लाइन मिला, बट फिर से एक अगेन ये पॉइंट की बात करते हैं कि देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस और देयर आर पीपल हु आर फाइटिंग फॉर द डेमोक्रेसी. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ब्रिटेन, जहां पार्टीज की पावर को रिड्यूस कर दिया गया. दीज आर नॉट माई वर्ड्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट द राइटर वांट टू कन्वे. अनदर ये बात करते हैं, फिर फ्रांस का एग्जांपल लेते हैं कि वहां पर किसी भी पार्टी को इन्होंने पावर में नहीं बैठाया, मींस जो पीपल है फ्रांस के, दे वोटेड नॉट इन फेवर ऑफ ओनली अ सिंगल पार्टी, सो द रिजल्ट इज हंग पार्लियामेंट. किसी को भी प्रॉपर मेजोरिटी नहीं मिली. दूसरी तरफ ये बात करते हैं अमेरिका के केस की, कि जिस अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर फेलोनी के चार्जेस थे, उन पर करप्शन के चार्जेस थे, उन पर पुतिन के साथ मिलने के चार्जेस थे, और उन पर चार्जेस थे कि उन्होंने यूएसए की कैपिटल पर भी अपना कोई एक रिबेलियन, एक मूवमेंट प्लान करवाया था. लेकिन फिर भी उन डोनाल्ड ट्रंप को इस समय सपोर्ट मिल रहा है और जो बाइडेन इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. जो बाइडेन के अगेंस्ट में बहुत सारी वॉइसेस निकल के आ रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि भाई आप बुजुर्ग हो गए हैं और आपको डिमेंशिया हो गया है, आपकी याददाश्त कम हो गई है, आपके जो है जो जुबान है वो ट्रैम्बल्ड कर जाती है, वो जबान लड़खड़ा जाती है, आप बोल नहीं पाते ठीक से. तो यू शुड बी अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड अलाउ टू हैव सम न्यू पीपल हु आर यंग एंड एनर्जेटिक. सो उनके अगेंस्ट में भी बात चल रही रिसेंटली, यू नो के कल ही अटैक हो गया डोनाल्ड ट्रंप पर. सो उसको भी अब हो सकता है पॉलिटिक्स में डिफरेंटली यूज किया जाए. फिर ये अदर डेमोक्रेसीज का एग्जांपल देते हैं, उसमें यूज करते हैं बांग्लादेश, भूटान, ताइवान, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ कोरिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको. ये सारी कंट्रीज की बात करते हैं, एक्सेप्ट बांग्लादेश की बात करते हैं. क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट बांग्लादेश अमंग दीज कंट्रीज, इन ऑल these countries people voted to either dethrone the government those was in continuous power, or they downsize the power of the party. In other words,
इन सारे कंट्रीज में लोगों ने ऐसे वोट किया कि जो पार्टी पहले से पावर में थी उसकी या तो वोट कम कर दी या किसी नई पार्टी को ही इलेक्शन में उसको विक्ट्री दिलवाई। जैसे इंडिया की बात करो, ब्रिटेन की करो, फ्रांस की करो, या इन इन कंट्रीज की बात करो। हाँ, बांग्लादेश को ये एक्सेप्शन मानते हैं, बिकॉज बांग्लादेश में जो अपोजिशन पार्टी थी शेख हसीना के अगेंस्ट में, उन्होंने इलेक्शन को ही बाइकआउट कर दिया था, इसीलिए शेख हसीना पावर में एब्सोल्युटली आई। अदरवाइज सारे कंट्रीज में हमको देखने को मिला है कि लोगों ने डेमोक्रेसी है उसको जो है सस्टेन करने के लिए ही वोट किया है। इट मीन्स किसी भी पार्टी को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बनने दिया। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ये कहते हैं देखो पाकिस्तान को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे इस अपने अपने नेबरहुड में या इन सेशन में, बिकॉज वहां पर डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज है ही नहीं। वहां पर तो फेक वोट वगैरह होता है, वहां की मिलिट्री वगैरह सब कुछ डिसाइड कर देती है। देन ही टॉक अबाउट सम रिसर्च एंड सम पोल्स which have been conducted by Pew Research Foundation. So according to the data of this research, around 59% people find unsatisfactory their democracy. That research was conducted in around 24 countries. So 24 countries में रिसर्च किया गया था, उसके अकॉर्डिंग 59% पीपल ने उस सर्वे में ये कहा कि हम अपनी कंट्री की डेमोक्रेसी से खुश नहीं है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो ठीक नहीं है। वहीं ये कहते हैं कि 13 कंट्रीज में जब रिसर्च किया गया तो वहां के बहुत सारे पीपल ने ये कहा, मेजोरिटी ऑफ पीपल ने, कि हमको ऐसे लीडर्स चाहिए जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हों, जो दबते न हों, जो कंट्रीज को पावरफुल बना सके। सो इस बेसिस पर ये कहते हैं कि 59% अगेंस्ट में है, 24 कंट्रीज का डेटा, 13 कंट्रीज के लोग जो स्ट्रॉन्ग लीडर चाहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, बहुत ज्यादा पावरफुल पार्टीज की डिमांड करते हैं। सो ये कहते हैं ओवरऑल ट्रेंड कैसा है डेमोक्रेसी का ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में एक वेव देखने को मिल रही है हमको ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस आर्टिकल। नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। One is mother of IAS officer told to reply to notice on misuse. ये एक IAS ऑफिसर है, उनकी मदर है, पिस्टल वगैरह लेकर के किसी फार्मर्स को धमकाती हुई दिखी थी। पावर का कैसे मिसयूज किया जाता है, जबकि यूपीएससी के पेपर 4 में ये सारे के सारे लोग जो है एथिक्स और इंटेग्रिटी को पढ़ के जाते हैं, इंटरव्यू में बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं कि आई वांट टू सर्व माय कंट्री, आई वांट टू रिड्यूस द करप्शन, और मैं देश की सेवा करूंगा, ये करूंगा। और ये 2023 के बैच के IAS ऑफिसर हैं, अभी प्रोबेशन पर हैं, तब इन्होंने ये हालात मचा दिए कि स्पेशल इनको सब कुछ स्पेशल चाहिए, जबकि प्रोबेशन के टाइम पर IAS IPS ऑफिसर्स को स्पेशल अरेंजमेंट्स नहीं मिलते। फिर भी इन्होंने पर्सनल गाड़ी पर जो रेड ब्लू बीकन होता है वो लगवाया, और भी बहुत सारे उन्होंने काम इनका जो है ब्लेम्स लग रहे हैं। इन पर ये भी ब्लेम है कि इन्होंने अपना डिफरेंटली एबल्ड जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी फेक बनवाया। इनके खुद के फादर IAS ऑफिसर रहे, है ना, फिर भी इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला। अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है तो बात होती है क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट की, कि 8 लाख से ऊपर की इनकम हो या EWS का सर्टिफिकेट हो। तो जब इनके खुद के पास में अराउंड 15 करोड़ का बैंक बैलेंस था इस महिला ऑफिसर के पास में, इनके फादर के पास में कई करोड़ की, और उन्होंने इलेक्शन भी फाइट किया था इनके फादर ने, तो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कैसे आए, इनको रिजर्वेशन कैसे मिला, इन पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट कैसे जो है लागू नहीं हुआ। तो अब जाकर के महाराष्ट्र की पुलिस एक्शन में आई है और इनके अगेंस्ट में लीगल एक्शंस स्टार्ट हुए हैं, वो गाड़ी वगैरह भी सीज कर ली है। सो यहाँ से पता चलता है कि जो ब्यूरोक्रेसी में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अलग तरह का मेंटालिटी हमको देखने को मिलती है कि अच्छी अच्छी बातें होंगी, लेकिन जब बात आएगी अपने फेवर की तो वो हमेशा अपने आप को कॉमन पीपल से ऊपर ही दिखाने की कोशिश करते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरी ऑफिसर, बट देयर आर सर्टेन ऑफिसर्स हु आर टारनिशिंग द इमेज ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर्स। एक ये इश्यू चल रहा है कि आर्मी ऑफिसर, ये जो महिला थी स्मृति सिंह, इनके हस्बैंड की जो है वो शहीद हो गए, इनको फिर पेंशन या जो फंड मिलता है उसको लेकर के इश्यू हुआ। इनके और इनके जो है पेरेंट्स जो थे, इनके इन लॉज, ठीक है, उनके बीच में इश्यू आया। तो यहाँ पर आर्मी ने ये क्लियर किया है कि नॉमिनेशन में जब पेंशन की बात आती है तो जो वाइफ होती है वही लीगली उसके लिए एलिजिबल होती है। बाकी जब आर्मी में
इंडक्शन होता है कहीं पर तो नॉमिनी का नेम वहां पे फिल करवाया जाता है। तो उसमें मदर फादर पेरेंट्स ब्रदर्स वो जो आर्मी में ऑफिसर्स या जो सोल्जर्स होते हैं वो फिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलता है। इसमें एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई थी कि इन्होंने पैसा छीन लिया, पेरेंट्स के अगेंस्ट में चली गई, इनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा था। सो वैसा इश्यू नहीं है, आर्मी का उन्होंने इस पर बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन मेड मैंडेटरी ऑन बल्क पैकेजेस। गवर्नमेंट एक नया रूल लेकर के आई है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो होलसेल में सेल होते हैं और वो केवल कंपनी के पर्पज के लिए यूज होते हैं या कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, तो उन पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बाकी सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, स्पेशली रिटेल की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये कह रहे हैं कि रिटेल में कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो उस पर आपको बेसिकली सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको देनी होंगी, प्रोवाइड करानी होंगी। जैसे क्या क्या डिटेल्स हैं? डिटेल्स हैं आपकी मैन्युफैक्चर उसका कौन है, किसने उसको इंपोर्ट किया, किसने उसको पैक किया, क्या उसमें कमोडिटी है ना, किस टाइम पर उसको बनाया गया, वो कब एंड डेट उसकी क्या होगी, कब तक वो फिनिश हो जाएगा। जैसे होता है ना बेस्ट बिफोर यूज बाई डेट, है ना। कंज्यूमर केयर की डिटेल क्या है उसके बारे में, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, यूनिट सेल प्राइस क्या है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है ना, मंथ क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसमें क्या कमोडिटी है, उसका कॉमन नेम क्या है या फिर उसका कोई जेनरिक नेम हो वो हो, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, पैकर का नेम क्या है, इंपोर्टर का नेम क्या है, मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है, जहां उसको प्रोड्यूस किया गया उस प्लेस का क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है ना, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होंगी। होता क्या था कि जो कंपनीज थी बहुत सारे ऐसी मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही थी जो कि बाद में जाकर के रिटेल में सेल हो रहा था। अब जो रिटेल सेलर थे अब वो मन मर्जी के रेट पर सेल कर रहे थे। हाँ, इन्होंने कुछ एक्सेप्शंस भी बताए हैं कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो 25 केजी या उससे ज्यादा के प्रोडक्ट हैं, बट जो इंटरनल यूज के लिए हो, या जैसे कि आप यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जैसे कि आपके सीमेंट वगैरह की बात कर रही है, तो बोला जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, है ना, वो सीमेंट हो गया, बोला इस पर ये सारी डिटेल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्योंकि मार्केट में सीमेंट के बोरे पर आप कितनी सारी डिटेल दोगे, सो उसकी रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं। ये उन्होंने अच्छा रूल बनाया है। अदरवाइज पैकेट्स पर कुछ भी डिटेल नहीं होती थी, उसकी फिर ब्लैक मार्केटिंग, मनमर्जी की रेट, फिर उसमें मान लो कोई फूड का प्रोडक्ट है तो FSAI जो फसाई जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे उसको ट्रेस करेगी, है ना। मान लो कोई प्रोडक्ट पकड़ा गया, अब उसमें पता चला कि भाई ठीक है इसमें कुछ एडल्ट्रेटेड फूड मिला, किसका था, किस कंपनी का था, और जब केस कोर्ट में पहुंचेगा वहां तक पे प्रूफ नहीं हो पाएंगे, तो उसके लिए ये रूल बहुत अच्छा लेकर के आई है गवर्नमेंट। तो आज के इस सेशन में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।